Hello everyone, good evening to all. How are you all? We are meeting after a long time, and I hope all of you did your exam well. Midterm कैसे गया? अच्छा है ना? Yes, मैं एक जैन भी भावनगर. Is my voice audible clearly? Zen B class 12. Yeah, everything is okay to start the class. It's already time. Shall I start the class? Everyone, please give me a thumbs up if you are ready. Okay, thank you. Chalo. So today we are going to start our new chapter, that is indefinite integration, right? And this is the first lecture, and in this lecture what we'll do, we'll see what is the definition of indefinite integration, we'll understand the geometrical meaning of indefinite integration, then also we'll learn some formula, basic formula, we'll solve some questions also, and finally क्वेश्चन करके ना नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है ना मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में, मेथड टू सॉल्व द इंटीग्रेशन, मेथड टू इवैल्यूएट द इंटीग्रेशन में जाएंगे, है ना. फर्स्ट इज मेथड बाय सब्स्टिट्यूशन, देन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, देन integration by partial fraction, है ना. All these three methods we'll learn in the next class. So in today's class, actually it's a basic class and you must understand all the concepts to solve the questions of integrations fluently. Okay, let's move. Okay, so see what is the definition of indefinite integration. What do you mean by, है ना? So this is actually integration is the reverse process of differentiation, right? That means here in your figure on your screen you can see if capital F of x is the differentiation of small f of x, right? Then reversely we can say this small f of x is integration of capital F of x. Clear everyone? That means we can understand by this way. If we'll differentiate small f of x, we are getting capital F of x, right? Then reversely, integration is the reverse process, right? That means if we'll integrate capital F of x with respect to x, then you will get also small f of x. Clear everyone? Example तुम ले सकते हो, जैसे कि अगर मैं मुझे पता है कि डेरिवेटिव ऑफ d by dx of sin of x is cos x, is that or not? तो सिंपली वी कैन से cos x की जो इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू x में, दैट विल बी sin x, है ना. समझ में आ रहा है सबको? सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन. दिस इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, राइट? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस, ये तो समझ में आ गया होगा सबको, है ना. इजी है. चलो ठीक है. Let's move to the geometrical understanding of constant of integration. That means constant means when you are integrating a factor, when you are integrating a function, what you are getting, you need to add a constant with that function. Why we are adding? This is important, right? Let's understand this concept. Suppose I am taking here x square and x square plus 2, suppose I am taking, right? So if I'll ask you the differentiation of x square with respect to x is, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? x square की डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, 2x with respect to x में. Also if I'll ask you to find the differentiation of x square plus 2, that will be also 2x. समझ में आ रहा है सबको? आ रहा है कि नहीं? ठीक है. तो x square की डिफरेंशिएशन 2x है, x square plus 2 की डिफरेंशिएशन 2x है with respect to x में, right? Okay, so this is all about your differentiation. If I'll ask you to now find the integration of 2x with respect to x, what it will be? It can be x square, yes or no? और तुम ऐसे भी बोल सकते हो 2x की जो इंटीग्रेशन होगा ये x square plus 2 भी होगा, क्योंकि x square का डिफरेंशिएशन 2x है और x square plus 2 का भी डिफरेंशिएशन 2x है. तो 2x की जो इंटीग्रेशन होगा दैट विल बी x square, और मैं बोल सकता हूं ये x square plus 2 भी हो सकता है. देखो x square plus 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? x square plus c का एनी कांस्टेंट,
इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, दैट इज ऑल्सो 2x। ये सुनो, समझ में आ रहा है? तो इन जनरली वी कैन राइट हियर 2x की जो इंटीग्रेशन होगा ना, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस सी। आया समझ में सबको? क्लियर एवरीवन, है ना? तो कोई भी देखो, ये सारे जो राइट हैंड साइड में तुम्हारे पास फंक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये सारे फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज 2x, है ना? बट व्हेन वी आर इंटीग्रेटिंग 2x विथ रिस्पेक्ट टू x, वी नीड टू ऐड ए कांस्टेंट विथ एक्स स्क्वायर। समझ में आया सबको? बिकॉज ये सारे तीनों फंक्शन की जो डिफरेंशिएशन है 2x है, तो मैं जनरली एक कांस्टेंट को मुझे ऐड करना चाहिए। कोई भी कांस्टेंट ले लो तुम, एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी कांस्टेंट को ऐड करो, उसको अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे 2x मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर एवरीवन, है ना? सो दिस इज व्हाई वी आर एडिंग ए कांस्टेंट व्हेन यू आर इंटीग्रेटिंग, एंड व्हेन यू आर इंटीग्रेट आफ्टर इंटीग्रेशन, व्हाट इज द आंसर यू आर गेटिंग? यू आर एडिंग ए कांस्टेंट विद दैट, राइट? ओके, सो हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट? बाय यूजिंग द ज्योमेट्री, है ना? तो मुझे ये पता है, जो ये वाला जो ग्राफ है ना, दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, yes or no? And this is the graph of y is equal to x square plus 2, right? So dy by dx means, what is dy by dx? इसका मीनिंग क्या है? जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है ना, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ द कर्व और स्लोप ऑफ टेंजेंट मैं बोल सकता हूं, है कि नहीं? समझ में आ रहा है सबको? तो कोई भी पॉइंट में ले लिया, यहाँ पे सपोज 1 लिया हूं मैं, है ना? 1 पे अगर x इज इक्वल टू 1 पे एक लाइन, डॉटेड लाइन में ड्रॉ किया, है ना? और ये पॉइंट में, ये दोनों पॉइंट में अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूं, ठीक है, ये दोनों पॉइंट में अगर मैं दो टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो जो टेंजेंट तुम्हें जो डॉटेड लाइन मिला है ना, वो दोनों टेंजेंट, ये भी एक टेंजेंट है और ये भी एक टेंजेंट है, ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को पैरेलल है कि नहीं? T1 is parallel to T2 or not? Yes, they are parallel to each other. That means their slope are same. Yes or no? That slope are same. Their slope are same. This is the geometrical meaning of, है ना? अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 भी, एक्स स्क्वायर प्लस 4 भी ले जाऊं, ठीक है, तो इस पॉइंट में मुझे और भी एक टेंजेंट मिलेगा जो पैरेलल टू T1 एंड T2 भी होगा। तो ये तीनों टेंजेंट की जो स्लोप होगा दैट दे आर सेम। समझ में आ रहा है सबको? दैट मींस देयर स्लोप आर सेम। तो स्लोप सेम मींस मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स स्क्वायर की जो डिफरेंशिएशन है दैट इज 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 2 की डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, एक्स स्क्वायर प्लस c की डिफरेंशिएशन दैट इज 2x। तो कोई भी कांस्टेंट को ऐड करो, कोई भी कांस्टेंट को ऐड करो एक्स स्क्वायर के साथ और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे सेम स्लोप मिलने वाला है, सेम dy by dx मिलने वाला है। दिस इज व्हाई वी आर एडिंग ए कांस्टेंट विद द इंटीग्रेशन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन गाइस? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स if it is clear to all. Yes, बोलो, give me a thumbs up if it is clear. Yeah, Mehak, Janvi Bhavnagar, clear everyone? Anyone having any doubt in this concept? इसमें कुछ doubt है क्या? बोलो. No doubt? Shall I move to the next concept? Okay, let's move. Now we are having on your screen, you can see some formulae are there, right? So actually very basic formulas are there, है ना? इसमें क्या है ना, फर्स्ट वन इज कॉल्ड पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन, है ना? ये पावर रूल को हम क्या कहते हैं भाई? देखो इसको हम कैसे समझेंगे? तो बेसिकली ये डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन को यूज करके ही किया गया है, राइट? देखो, तो एक्स टू द पावर एन की, एक्स टू द पावर एन, अच्छा मैं अगर डिफरेंशिएट करूं किसको, मैं अगर ये राइट हैंड साइड को, ये राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करूं तो मुझे एक्स टू द पावर एन मिलना चाहिए, ताकि मैं एक्स टू द पावर एन को इंटीग्रेशन करूं तो मुझे ये मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, अगर मैं डिफरेंशिएट करूं डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, तो तुम्हें क्या मिलेगा? देखो, 1 by n plus 1 is your constant, I can take it outside, then d by dx of x to the power n plus 1, right? तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा ना, 1 by n plus 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n plus 1 इज क्या हो जाएगा? x to the power n plus 1 इंटू x to the power n, तो n plus 1 कैंसिल हो जाएंगे, तो मुझे क्या मिला? x to the power n। समझ में आया सबको? क्लियर और नॉट? तो सिमिलरली अगर मैं इंटीग्रेशन करूं x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x में, तो मुझे क्या मिलना चाहिए?
इसको अगर वी नो इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट? तो दैट मीन्स अगर इसका डिफरेंशिएशन ये है तो इसका डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगा, ये हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, एक्स टू द पावर n प्लस वन बाई n प्लस वन प्लस सी, है ना? दिस इज हाउ वी कैन डिराइव द फॉर्मूला ऑफ पावर रूल। क्लियर एवरीवन? क्लियर और नॉट? राइट, कम टू द सेकेंड वन। ये तो सबको समझ में आ गया होगा। आई होप ऑल ऑफ यू हैव कंप्लीटेड ऑल दीज थिंग्स इन योर स्कूल आल्सो, राइट? कम टू द second formula, what it is saying, integration of 1 by x dx is log of x plus, राइट? तो मुझे ये पता है कि डेरिवेटिव ऑफ ln x क्या होता है, 1 by x होता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x क्या हो जाएगा ना, इट विल बी ln ऑफ x प्लस c। हो गया, सेकेंड वाला हो गया। थर्ड वाला क्या है ना, e टू द पावर x, e टू द पावर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू x, पूरा डेफिनेशन को यूज करके ही किया गया है, ठीक है ना? डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x, आई नो दैट। तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x विल बी e टू द पावर x प्लस c, सिंपल, है ना? फोर्थ वन इज सेइंग a टू द पावर x की डिफरेंशिएशन। अच्छा, a टू द पावर x की इंटीग्रेशन, a टू द पावर x अपन ln ऑफ a, राइट? a टू द पावर x अपन ln ऑफ a, राइट? तो उसको हम कैसे करेंगे ना, डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, बोलो? डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x क्या होता है? कैन यू राइट इन द चैट बॉक्स? a टू द पावर x इंटू ln ऑफ a, है कि नहीं? समझ में यार? तो दोनों साइड में अगर मैं ln a को डिवाइड कर लूं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि कांस्टेंट में डेरिवेटिव में अंदर ले सकता हूं, बाहर भी कर सकता हूं, ठीक है? तो मैं ये बोल सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x बाई ln a इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में ln a को मैं क्या किया, कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a टू द पावर x। तो फ्रॉम हियर वी कैन से जो इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x विथ रेस्पेक्ट टू x, ये क्या हो जाएगा ना, a टू द पावर x अपन ln ऑफ a प्लस c। क्लियर एवरीवन? ओके, फोर्थ वन इज कंप्लीटेड। समझ में आ गया सबको? इजी फॉर्मूला है कि नहीं? चलो, क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट है? ये चारों फॉर्मूला क्लियर है? देखो, आज से हम इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तो काफी सारे फॉर्मूला ये चैप्टर में आने वाला है, ठीक है? तो तुम एक काम करो, एक कॉपी लो, नोट बना लो, सारे फॉर्मूला को लिस्ट आउट करो। कहीं पे अगर मैं कुछ शॉर्टकट बता रहा हूं तो उसको भी नोट डाउन करना है तुम्हें, ठीक है? ताकि तुम्हें एग्जाम के टाइम तुम इजीली रिवाइज कर सकते हो, है ना? ओके ओके, ये अभी 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 क्या हम 4 फॉर्मूले कंप्लीट किए हैं। तो नेक्स्ट इज, देखो इसमें कुछ थियरम्स हैं। थियरम क्या कह रहा है कि कांस्टेंट, अगर कोई भी फंक्शन के साथ कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो वो कांस्टेंट को बाहर लेके भी अगर फंक्शन को इंटीग्रेशन करेंगे तो दोनों का आंसर सेम आएगा। समझ में आ रहा है? दैट मीन्स if I'll multiply integration of k into f of x with respect to x, so this constant can be come outside, then this will be same as this, right? The same. Second one is saying integration of f1x of, अगर तुम्हारे पास दो फंक्शन है, सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास दो फंक्शन है, f1 f x प्लस f2 of x, टू फंक्शंस यू हैव। अगर इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, दोनों को साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट करेंगे, जो भी तुम्हें आंसर मिलेगा दैट इज इक्वल टू आल्सो इफ यू इंटीग्रेट इंडिविजुअली and add them. If you integrate individually and add them, you will get also same answer. ठीक है? This is the second theorem. Okay. Third theorem it is saying if, this is important. Let's understand these things. Okay. ये important है, समझो अच्छे से। ये बोल रहा है कि if integration of small f of x is equal to capital F of x, यही बोला है। If integration of small f of x with respect to x is capital F of x, then ये कह रहा है कि जो then we can say integration of f of x plus b और x minus b, small f of x
प्लस बी और माइनस बी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, ये क्या हो जाएगा ना, दिस विल बी कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस और माइनस बी डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए, राइट, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ ए। ये रिजल्ट है मेरा, इसको हम प्रूव भी करेंगे, डोंट वरी, है ना। कैसे होगा, देखो, सपोज आई एम टेकिंग वन फंक्शन हियर, इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का स्क्वायर dx। अच्छा, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बोलो चैट बॉक्स में मुझे। इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू x में पावर रूल यूज करेंगे ना, पावर रूल यूज करेंगे। अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स, मेरे पास स्मॉल एफ ऑफ एक्स क्या है, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, तो पावर रूल यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा ना, 2x प्लस 3 टू द पावर 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3, है ना, इनटू क्या करना है मुझे, डिवाइड करना है एक्स के कोएफिशिएंट के साथ, दैट इज 1/2 प्लस सी, है ना, ये हो जाएगा उसका इंटीग्रेशन, ये रिजल्ट को यूज करके। आया समझ में सबको, क्लियर और नॉट। अच्छा, इसको अगर हम ट्राई करेंगे प्रूफ करने के लिए, तो प्रूफ कैसे होगा उसका, देखते हैं प्रूफ कैसे करेंगे। ये बोला है, अच्छा मुझे ये पता है कि स्मॉल एफ ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन जो होता है दैट इज कैपिटल एफ ऑफ एक्स, राइट, समझ में आया सबको। अच्छा, मैं अगर डेरिवेटिव करूं किसको, कैपिटल एफ ऑफ एक्स को, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, मिलना चाहिए, मुझे मिलेगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स। सो आई कैन राइट दिस एज ऑल्सो कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स, यस और नो। यहां से मुझे ये पता चला। नाउ नाउ अभी हम क्या करेंगे ना, डी बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस बी, इसका अगर हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मुझे चेन रूल यूज करके क्या मिलेगा ना, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस बी इंटू ए, है कि नहीं, चेन रूल यूज करके हम ये बता सकते हैं। अच्छा, तो अभी अभी मुझे रिजल्ट क्या मिला है, मुझे रिजल्ट ये मिला है, इसमें ये जो रिजल्ट मुझे क्या मिला है, कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। सो कैपिटल एफ डैश ऑफ एक्स प्लस बी इज ऑल्सो इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस बी, आई कैन राइट इंटू ए, ये सर नो, समझ में आया सबको। अगर अभी अभी दोनों साइड में मैं ए को डिवाइड कर दूं, इसमें भी ए को मैं डिवाइड करूं और इस साइड में भी ए को डिवाइड करूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ये मिलेगा, क्या मिलेगा मुझे, डी बाई डी एक्स ऑफ 1/a कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव होगा दैट विल बी स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस बी। अच्छा, here we are getting derivative of this function, derivative of this function is this function, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ, मैं यहां पे बता सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस बी क्या हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड साइड में तुम लिए हो डेरिवेटिव, जिसका ये जिसका डेरिवेटिव है वो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, तो ये इट विल बी एफ ऑफ एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई ए प्लस सी। ये याद रखो, ये फॉर्मूला को याद रखो, इंपॉर्टेंट है। तो एक्स की कोएफिशिएंट को सिंपली एक्स की जो कोएफिशिएंट होगा ना उसको डिवाइड करना है इंटीग्रेशन करने के बाद, ठीक है, जो भी इंटीग्रेशन होगा उसको इंटीग्रेशन करने के बाद एक्स की कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है और कुछ नहीं, ठीक है। ओके, लेट्स मूव टू वन क्वेश्चन हियर, है ना। ऑन योर स्क्रीन यू हैव ए क्वेश्चन, आई एम गिविंग यू 1 minute फॉर दिस क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट and your time starts now. When you are getting the answer, please respond in the chat box, everyone. Anyone got the answer? Write in the chat box. या क्या होगा आंसर, किसी को मिला क्या? Anyone got the answer? Let's see. What is the solution of this question? कैसे करेंगे हम इंटीग्रेशन का? अच्छा, मुझे क्या दिया है ना, इंटीग्रेशन ऑफ
इसको अच्छे से लिख दूं क्या? नहीं समझ में आ रहा है ना? ई टू द पावर एक्स एल एन ए। अच्छा मुझे ये पता है कि ई टू द पावर एक्स एल एन एक्स क्या होता है। सपोज हियर आई एम टेकिंग टू एल एन एक्स, तो क्या हो जाएगा ना, वी कैन राइट दिस एज ई टू द पावर एल एन एक्स की स्क्वायर। ई टू द पावर एल एन एक्स की वैल्यू क्या होता है? ई टू द पावर एल एन एक्स की वैल्यू क्या होता है? एक्स होता है। ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? है ना? तो सेम यूज करेंगे हम यहाँ पे। तो मेरे पास क्या है ना, ई टू द पावर एल एन ए टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एल एन एक्स टू द पावर ए प्लस 3 इंटू ई टू द पावर एल एन ए टू द पावर ए, है ना? विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में हमें इंटीग्रेट करना है। ठीक है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा? देखो ई टू द पावर एल एन एक्स इज एक्स, तो ई टू द पावर एल एन ए टू द पावर एक्स विल बी ए टू द पावर एक्स माइनस ई टू द पावर एल एन एक्स टू द पावर ए विल बी एक्स टू द पावर ए, देन 3 इंटू प्लस 3 इंटू ई टू द पावर एल एन ए टू द पावर ए, दैट इज ए टू द पावर ए। है कि नहीं? आया समझ में सबको? क्लियर है कि नहीं? कोई डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे इंटीग्रेट करना इजीली, मैं आसान से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। तो ए टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? अभी अभी देखे थे हम लोग, ए टू द पावर एक्स की इंटीग्रेशन क्या होता है? ए टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एल एन ए माइनस एक्स टू द पावर ए की इंटीग्रेशन पावर रूल यूज करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स टू द पावर ए प्लस वन बाई ए प्लस वन प्लस 3 इंटू ए टू द पावर ए की इंटीग्रेशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। नहीं ये तो कांस्टेंट है ना, सॉरी इंटीग्रेशन 3 into the power a to the power a, 3 into a to the power a is your constant and x plus c. This is your integration or no? This is the answer. Clear? This is the answer. है कि नहीं बोलो? आया समझ में सबको? क्लियर? एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या? एनीवन हैविंग एनी डाउट? कोई डाउट है इसमें? ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये क्वेश्चन के लिए मैं भी 1 मिनट तुम लोगों को दे रहा हूं। लेट्स सॉल्व इट एंड टेल मी व्हाट इज द आंसर। बेसिक में जा रहे हैं हम अभी, कुछ नहीं है, फार्मूला, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। बताओ मुझे व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस इंटीग्रेशन। Anyone got the answer? Okay, let's see how we can solve it. देखो हम क्या करेंगे ना, डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है? x प्लस वन। अगर मैं न्यूमरेटर में x प्लस वन को ले जाऊं, अगर मैं बना सकता हूं तो कुछ भी तो हो सकता है। देखो तो मैं क्या करूंगा ना, न्यूमरेटर में एक्स क्यूब प्लस वन माइनस वन कर दिया डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। अच्छा एक्स क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला तो मुझे पता है ना, तो क्या होता है ये? ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। ठीक है, डिवाइडेड माइनस वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। उसको अभी स्प्लिट कर सकता हूं मैं, दैट इज एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। है कि नहीं? अभी आराम से मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, एक्स प्लस वन दोनों से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा फिर? देखो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन माइनस वन बाई एक्स प्लस वन डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई थ्री, एक्स की इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, वन की इंटीग्रेशन एक्स होता है, एंड वन अपॉन एक्स प्लस वन की इंटीग्रेशन क्या होगा ना, एल एन ऑफ वन प्लस एक्स प्लस। दिस इज योर आंसर।
दिस इज हाउ यू कैन इंटीग्रेट दिस फंक्शन. क्लियर एवरीवन? एनीवन हैविंग एनी डाउट? इसमें कोई डाउट है क्या? है कुछ डाउट? बोलो. उदय, क्लियर? चलें मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चलें आगे चलें. Okay. See, for this question also, I am giving you 1 minute and try to solve it. Solve करो. चलो ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सबका. ओके, लेट्स सी. अच्छा, ये क्वेश्चन को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? सॉल्व के सिंपलीफाई तो पहले तो मुझे सिंपलीफाई करना है. अदरवाइज हाउ कैन यू सॉल्व इट? अच्छा देखो, न्यूमरेटर में यू हैव 4 to the power x, so I can write this as 2 to the power x to the power 2 प्लस 9 to the power x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज 3 to the power x to the power 2 प्लस इसको हम 6 to the power x को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 to the power x into 3 to the power x divided by डिनोमिनेटर में व्हाट यू आर हैविंग 10 to the power x, that is we can write this as 5 to the power x into 2 to the power x plus 5 to the power x into 3 to the power x dx. राइट? देखो न्यूमरेटर में क्या है तुम्हारे पास, न्यूमरेटर में इन न्यूमरेटर यू आर हैविंग 2 to the power x plus 3 to the power x की स्क्वायर divided by, if we'll take common 5 to the power x in the denominator, what you are having 2 to the power x plus 3 to the power x dx. राइट? तो दोनों से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से तुम इसको कैंसिल कर सकते हो और तुम्हारे पास फाइनली बचा है 2 to the power x plus 3 to the power x divided by 5 to the power x dx. So we can split it also, that is we can write this as 2 by 5 to the power x plus 3 by 5 to the power x dx. राइट? अभी हम इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं. इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, a to the power x का इंटीग्रेशन क्या होता है, a to the power x अपन ln है. तो सिंपली यहाँ पे भी मैं बोल सकता हूँ 2 to the power 2 by 5 to the power x अपन ln 2 by 5 प्लस 3 अपन 5 to the power x अपन ln 3 by 5 प्लस c, है ना. ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन. कोई दिक्कत है इसमें? कोई डाउट है इसमें? बोलो, कोई डाउट है तो बताओ. क्लियर है ना एवरीवन? इज इट क्लियर टू ऑल? बोलो. क्लियर? कोई डाउट है इसमें? No doubt. Shall I move to the next? Okay, let's see. Here we are having some formula. Definition को यूज करके some formula को हम derive किए हैं. देखो, मुझे ये पता है कि sin x के डिफरेंशिएशन होता है, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड cos x, है ना. तो sin x के डिफरेंशिएशन होता है cos x, सॉरी cos x के डिफरेंशिएशन क्या होता है, that is minus sin of x. So simply here we can say integration of cos x is sin x plus c.
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बी माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, है ना। डेफिनेशन को यूज करके मैं बता सकता हूँ, ये सुनो, डेफिनेशन, इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को यूज करके मैं सारे फॉर्मूले को डिराइव कर सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये भी पता है कि सेकेंड स्क्वायर एक्स टैन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होता है? व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ टैन एक्स? दैट इज सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? टैन एक्स प्लस सी, है कि नहीं? सिमिलरली यहां पे तुम देख सकते हो कॉट एक्स की जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स होता है, तो कॉस एक्स स्क्वायर के एक्स की जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा माइनस कॉट एक्स प्लस, राइट। सिकेंट ऑफ एक्स की जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज सिकेंट एक्स प्लस टैन एक्स, राइट। तो सिकेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सिकेंट एक्स इंटू टैन एक्स इज सिकेंट एफ एक्स प्लस, राइट। सिमिलरली cosec x की जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज माइनस cosec x इंटू कॉट एक्स, राइट। तो सिमिलरली वी कैन से इंटीग्रेशन ऑफ cosec x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू cosec x प्लस सी। क्लियर एवरीवन, है ना? सो टिल नाउ वी हैव कंप्लीटेड 10 फॉर्मूले, है ना, 5 6 7 8 9 10। ये सारे फॉर्मूले को तुम नोट डाउन कर लो, है ना। आज से जितने सारे फॉर्मूले हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सारे फॉर्मूले को तुम्हें नोट डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो, इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है, तुम्हें एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा ना, बोर्ड में तो छोड़ो हो जाएगा क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन मेंस में आता है, एडवांस में आता है, तो वो क्वेश्चन को ना तुम तभी सॉल्व कर सकते हो जब भी तुम बहुत सारा क्वेश्चन इंटीग्रेशन में कर सकते हो। तुम बीच बीच में तुम ये भी पूछ सकते हो, कभी तुम्हारे दिमाग में ये भी आएगा कि सर आपको कैसे पता है कि ऐसे करने से उसका आंसर आएगा, है ना। तो वो चीज जो है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व करते 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 वो तुम में भी डेवलप हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मेरा ये सजेशन है कि तुम लोग क्या करो, इंटीग्रेशन के चैप्टर में ना तुम जितना ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही अच्छा है, ठीक है। ओके, चलो लेट्स मूव टू सम अनदर फॉर्मूले। यहाँ पे देखो, tan x की जो इंटीग्रेशन, ये तो मुझे पता नहीं है ना, तो tan x की जो इंटीग्रेशन है तुम उसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स यूज करके कर सकते हो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, थोड़ा उसको डेफिनेशन के हिसाब से ट्राई करेंगे कि उसका आंसर क्या होने वाला है, राइट। अच्छा, tan x को कैसे कर सकता हूँ? tan x को इंटीग्रेशन में बोल रहा हूँ कि log ऑफ सेकेंड ऑफ x प्लस सी, ठीक है। log ऑफ सेकेंड ऑफ x प्लस सी। अच्छा, प्रूव कैसे करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे? तो ये जो राइट हैंड साइड में जो है तुम्हारे पास, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे और मुझे tan x मिल जाए तो ये हो गया फिर वेरीफाई, है ना। तो लेट्स डिफरेंशिएट डी बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड ऑफ x प्लस सी। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मॉड क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि लॉगरिदमिक फंक्शन की जो आर्गुमेंट है वो आर्गुमेंट में कभी भी तुम्हें ऑलवेज यू हैव टू टेक द पॉजिटिव वन, पॉजिटिव नंबर, राइट। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग मॉड। तो लेट्स डिफरेंशिएट इट। अच्छा, ln ऑफ सेकेंड ऑफ x, ln ऑफ sec x की जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 1 अपॉन सेकेंड ऑफ x इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ, चेन रूल यूज करो, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड ऑफ x, दैट इज tan x इनटू sec x, है कि नहीं? और इसका डिफरेंशिएशन 0 होता है ना। तो यहां से देखो, सेकेंड ऑफ x विल बी कैंसिल आउट, फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, वी आर गेटिंग tan ऑफ x। तो इंटीग्रेशन अभी मैं बता सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ tan x विथ रिस्पेक्ट टू x इज ln ऑफ सेकेंड ऑफ x प्लस सी। अच्छा, तुम बताओगे सर ये बीच वाला कैसे आया? वाओ, यू आर गेटिंग द मिडिल वन। ये मुझे कैसे मिलेगा? तो मुझे ये पता है ना, लॉगरिदमिक की फॉर्मूला से मुझे पता है कि ln ऑफ 1 अपॉन x इज इक्वल टू ln माइनस ऑफ ln ऑफ x, ये नो। तो सेम मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ln ऑफ 1 अपॉन cos x प्लस c। तो आई कैन राइट दिस एज ln ऑफ 1 अपॉन cos x कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ ln ऑफ cos x प्लस c, है ना। तो ये भी मिल गया, ये भी है और ये भी है ना। दिस इज द 11th नंबर फॉर्मूला फॉर यू, है ना।
रिमेंबर दिस फॉर्मूला। tan x की जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज ln ऑफ secant ऑफ x प्लस c और माइनस ऑफ ln ऑफ cos x प्लस c, राइट? क्लियर एवरीवन, है ना? चलो लेट्स मूव टू द सेकंड नेक्स्ट वन, दैट इज cot x की इंटीग्रेशन क्या होगा? व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot x विथ रिस्पेक्ट टू x? इसका इंटीग्रेशन हम कैसे करेंगे? तुम वो मेथड में भी कर सकते हो, मतलब राइट हैंड साइड को डिफरेंशिएट करके तुम्हें cot x मिलेगा, और ऐसे भी कर सकते हो। कैसे? जैसे कि मैं यहाँ मुझे पता है कि जो cot x होता है दैट इज cos x अपन sin x dx, राइट? छोटा सा सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे यहाँ पे। देखो, आई एम टेकिंग लेट साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी। तो अगर हम दोनों साइड को डिफरेंशिएट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा ना, cos x dx इज इक्वल टू dt। तो dt हो गया मेरा cos x। तो इसमें अगर हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos x dx क्या है, dt है। तो dt अपन sin x क्या लिया हूं मैं, t। तो मुझे क्या मिलेगा, 1 अपन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ t प्लस c। तो ln ऑफ t प्लस c, तो ln ऑफ t को रीसब्स्टिट्यूट करो ना, क्या मिलेगा तुम्हें, ln ऑफ मॉड ऑफ साइन ऑफ x प्लस c, है ना? सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ cot ऑफ x, ln ऑफ मॉड ऑफ साइन x प्लस c। क्लियर? क्लियर एवरीवन? बोलो, इफ यस गिव मी अ थम्स अप एवरीवन गाइस, इट इज क्लियर टू ऑल? ओके, तो वो वाला मेथड में भी यूज कर सकते हो, जैसे कि तुम वेरीफाई कर सकते हो डी बाई डी एक्स ऑफ ln ऑफ मॉड ऑफ साइन एक्स प्लस सी। तो इसका क्या हो जाएगा, यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपन साइन एक्स, और साइन एक्स की इंटीग्रेशन होता है कॉस एक्स, है ना? तो कॉस एक्स अपन साइन एक्स क्या हो जाएगा, कॉट एक्स, है ना? तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स क्या हो जाएगा फिर, ठीक है ना? आया समझ में, है ना? कैसे भी कर सकते हो तुम। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट फॉर्मूला है cosec x की इंटीग्रेशन। अच्छा, ये कैसे करेंगे हम, cosec ऑफ x की इंटीग्रेशन जो मैं हुआ, मैं बोल रहा हूं कि ये हो जाएगा log ऑफ cosec x माइनस cot x का मॉड प्लस सी। अच्छा, चलो वेरीफाई करते हैं फिर, d बाई डी एक्स ऑफ लेन ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 अपन cosec x माइनस कॉट एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है रे, cosec x की जो डिफरेंशिएशन होता है दैट इज, बोलो cosec x की डिफरेंशिएशन क्या होता है, cosec x इंटू cot x, है कि नहीं, माइनस ऑफ cosec x इंटू cot ऑफ x। और cot x की डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर x इंटू, सॉरी ये हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x। तो माइनस पहले से था, ये तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? अच्छा, अगर इसमें से मैं cosec x को कॉमन ले लूं, ठीक है ना, cosec ऑफ x को मैं अगर कॉमन ले लूं, cosec x को कॉमन लेने के बाद मुझे क्या मिलेगा, देखो, ठीक है, cosec x को मैं न्यूमरेटर से cosec x को कॉमन ले लेता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा ना, cosec ऑफ x माइनस cot ऑफ x, और डिनोमिनेटर में है क्या तुम्हारे पास, cosec ऑफ x माइनस cot ऑफ x। तो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर से दोनों टर्म को कैंसिल कर दो, फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग, वी आर गेटिंग cosec ऑफ x। तो इंटीग्रेशन ऑफ cosec ऑफ x क्या हो जाएगा, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, ln ऑफ मॉड ऑफ cosec x माइनस cot x प्लस। आया समझ में सबको? अच्छा, तुम ये भी पूछ सकते हो सर हाउ यू आर गेटिंग द थर्ड वन, जो लास्ट वाला टर्म ln ऑफ tan ऑफ x बाई टू प्लस सी, है ना? इसको कैसे करेंगे, देखो, हम ये जो है ना, ये जो है, इसको हम बस, मुझे पता है कि cosec x की जो इंटीग्रेशन होता है दैट इज दिस, ओके?
ठीक है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मुझे ये मिलेगा, मैं ये बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो देखते हैं फिर। मेरे पास क्या था ना, ln ऑफ cosec x माइनस cot x, ठीक है, प्लस सी। ये इंटीग्रेशन था किसका, cosec ऑफ x का, इंटीग्रेशन ऑफ cosec ऑफ x dx, राइट। अच्छा, तो इसको अगर हम फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ ना, ln ऑफ 1 अपन साइन एफ एक्स माइनस कॉस एक्स अपन साइन ऑफ एक्स प्लस एलसीएम ले लो। तो एलसीएम लेने के बाद क्या हो जाएगा ना, मुझे मिलेगा ऊपर में क्या मिलेगा ना, 1 माइनस कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ठीक है, फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ कॉस कॉस ऑफ 2x, है ना, cos 2x के फॉर्मूला को यूज करेंगे तो मुझे जो 1 माइनस cos x की जो फॉर्मूला है दैट इज 2 साइन स्क्वायर ऑफ x बाई 2, हाफ एंगल फॉर्मूला यूज किया, और नीचे क्या हो जाएगा ना 2, आई कैन राइट दिस एज 2 साइन ऑफ x बाई 2 इंटू कॉस ऑफ x बाई 2। ठीक है, तो 2 2 कैंसिल हो गया, एक साइन x बाई 2 एक साइन में x बाई 2 कैंसिल हो गया। तो मैं ये बता सकता हूँ ln ऑफ साइन ऑफ x बाई 2 अपन कॉस ऑफ x बाई 2 दैट इज टैन ऑफ x बाई 2 प्लस। हो गया, समझ में आ गया सबको, आया समझ में, टैन ऑफ x बाई 2 प्लस सी, होगा कि नहीं बोलो, ये आया, क्लियर है सबको? इफ यस गिव मी थम्स अप, इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क, कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर है, चलो बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ठीक है ठीक है, लेट्स मूव टू द लास्ट वन। अच्छा, ये भी तुम वैसे भी सिमिलर मेथड यूज करके इसको डिफरेंशिएट करो, है ना, ये मिलेगा तुम्हें। फिर से अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें। ठीक है, तो उसी मेथड को यूज करके ये फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हो। अभी ना, अभी तक हम 14 फॉर्मूले डिराइव कर चुके हैं। ठीक है ना, ये सारे फॉर्मूले को तुम्हें नोट डाउन करना है तुम्हारे कॉपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम रियल इंटीग्रेशन में जाएंगे ना, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मेथड ऑफ बाई पार्ट्स, integration by parts, integration by using the partial fraction, all these things we will go through, right? तो ये सारे बेसिक थिंग तुम्हें पता होना चाहिए वो सारे चीज के लिए। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, लेट्स मूव टू वन क्वेश्चन। ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे, बता सकते हो मुझे? ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? साइन स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स में, ये क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे? मुझे ये पता है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है, राइट। और यहाँ पे मेरे पास है साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, यानी मैं ये कर सकता हूँ, एक 4 को मल्टीप्लाई करूंगा और 4 को डिवाइड करूंगा तो शायद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, राइट। तो ये क्या हो जाएगा अभी, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज साइन 2x। फिर से क्या मिलेगा तुम्हें, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन स्क्वायर ऑफ 2x dx, है कि नहीं? अभी हम फॉर्मूला यूज करेंगे किसका, मुझे ये पता है कि cos 2 थीटा जो होता है ना, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, राइट। तो साइन स्क्वायर ऑफ थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा विल बी 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा, है कि नहीं? ये साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्मूला है। तो यहां से मैं डिराइव कर सकता हूं ना, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इन प्लेस ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ 2x आई कैन राइट 1 माइनस, है ना, आई कैन राइट हियर 1 माइनस कॉस ऑफ 4x बाई 2, 2 हो जाएगा, है कि नहीं, विथ रेस्पेक्ट टू x। अभी आराम से तुम उसका आंसर निकाल सकते हो, कैसे, स्प्लिट कर लो ना, ये हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस कॉस ऑफ 4x बाई 2 dx। तो 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 का हो जाएगा x/2 माइनस कॉस ऑफ 4x का इंटीग्रेशन होगा साइन ऑफ 4x बाई 2, साइन ऑफ 4x बाई 4, और नीचे है 2 तो 8 प्लस, ये हो जाएगा उसका आंसर। क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन?
प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स इफ इट इज क्लियर टू ऑल गाइस। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में लिखो कि हाँ सर हो गया ये क्वेश्चन। बोलो, गिव मी अ थम्स अप इफ इट इज क्लियर टू ऑल गाइस। यस, इट इज क्लियर टू ऑल। एनीवन हैविंग एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? किसी को कुछ डाउट है क्या, पूछ सकते हो। क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन cos ऑफ x माइनस अल्फा इंटू cos ऑफ x माइनस बीटा, इसको हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? अच्छा, x माइनस अल्फा माइनस x माइनस बीटा, तो ये क्या हो जाएगा? x x तो कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरे पास क्या बचेगा ना, बीटा माइनस अल्फा है ना, बीटा माइनस अल्फा। तो मैं क्या करूं, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा को मल्टीप्लाई करूंगा और साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा को डिवाइड करूंगा। ठीक है, ओके, डन। अच्छा, साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, देखो, साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा माइनस एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा। ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताओ मुझे, हाँ कि ना? तो साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला हम यूज करेंगे अभी, है ना? तो ए क्या है ना, एक्स माइनस अल्फा, बी क्या है, एक्स माइनस बीटा। तो यूज करो 1 अपॉन साइन ऑफ, तो यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी क्या हो जाएगा ना, साइन ए इंटू कॉस बी, है ना? तो साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा माइनस क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ ए, दैट इज कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा डिवाइडेड बाय कॉस ऑफ, इसमें भी डिवाइड करो, कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटू कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा, और इसमें भी डिवाइड करो, स्प्लिट कर दिया मैं। ठीक है, और dx का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में इंटीग्रेट करो। देखो यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा, कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा कैंसिल हो रहा है, साइन ऑफ एक साइन ऑफ सॉरी कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा, कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास बच क्या रहा है ना, tan ऑफ एक्स माइनस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट वी आर हैविंग नाउ, 1 अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटीग्रेशन ऑफ, यहां से बचा साइन ऑफ एक्स माइनस अल्फा अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस अल्फा इज tan ऑफ एक्स माइनस अल्फा, और अभी और क्या है मेरे पास, कॉस साइन ऑफ एक्स माइनस बीटा अपॉन कॉस ऑफ एक्स माइनस बीटा, दिस इज tan ऑफ एक्स माइनस बीटा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में इंटीग्रेट करो। ठीक है, आया? तो मुझे पता है ना tan ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स, तो ये इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना, दैट इज ln ऑफ सिकेंट ऑफ एक्स माइनस अल्फा की मॉड माइनस ln ऑफ सिकेंट ऑफ एक्स माइनस बीटा की मॉड प्लस सी, है कि नहीं? ये हो जाएगा उसका आंसर। क्लियर एवरीवन? ये हो जाएगा उसका आंसर, और कुछ नहीं। आया समझ में सबको? क्लियर है? चलो, लेट्स मूव थ्रू सम अदर फॉर्मूले। यहाँ पे देखो कुछ फॉर्मूला तुम्हारे स्क्रीन पे है, इसको अभी के लिए याद रख लो, इसको डिराइव भी करेंगे बाद में जब हम पढ़ेंगे मेथड्स, है ना? dx अपॉन अंडर रूट, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x। तो साइन, अरे ये डेफिनेशन को यूज करके भी कर सकते हैं ना, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होता है, दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। सिमिलरली सेकेंड ऑफ इन सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, 1 अपॉन एक्स इंटू ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू ऑन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या हो जाएगा ना, सेकेंड इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। सिमिलरली tan इनवर्स ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ एक्स इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है कि नहीं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स विल बी tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी, tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये अभी तक हम कितने फॉर्मूले पढ़ चुके हैं ना, 17 नंबर ऑफ फॉर्मूले वी हैव कवर्ड, राइट। So you need to note it down all the formula, है ना, on your copy, right? चलो, let's move to one question. This is for your homework question. You can try this question. इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें क्या है, कुछ भी है नहीं, तो क्या कर सकते हो इसमें, 1 अपॉन एक्स की जो सॉरी इसमें क्या हो जाएगा 1, इसका फॉर्म क्या है, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस 2x की स्क्वायर, है कि नहीं, dx। तो ये किसका होता है ना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स के होता है ना। इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ना, साइन इनवर्स ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2, x के कोएफिशिएंट को डिवाइड करना भूलना मत, प्लस सी। ये हो जाएगा उसका आंसर, सिंपल है ना, सिंपल है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेस क्लास। ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन, method by substitution, integration by using the method of substitution. Second one is integration by parts. Third one is integration by using the partial fraction, and so all these three methods are very important, and we'll start from substitution methods. In the next class we'll try to complete the integration by substitution method, right. That's all for today's class. Thank you guys, bye bye, take care everyone.